Hello friends, welcome to Law and GK. So friends, on this channel we discuss the contents of law and previous year papers of judicial services and other legal exams. And friends, in today's video we are going to discuss all the questions of Negotiable Instrument Act which came in the exam paper of UGC NET law papers from the year 2016 to 2023. So friends, if you are preparing for judicial services, this channel will be very useful for you. एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दी चैनल एंड व्हाइल सब्सक्राइबिंग डोंट फॉरगेट टू प्रेस दी बेल आइकॉन सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन ऑफ आवर अपकमिंग वीडियोस. सो लेट्स मूव टू द क्वेश्चन पेपर. This is 87. Which of the following are characteristics of government promissory note? It is a promise of President of India or Governor of State. This is correct. It is regulated by the Indian Securities Act. This is also correct. They are not negotiable instruments. No. They are negotiable instruments. So this is wrong. They can assign without endorsement. No, it cannot be assigned without endorsement. So this is also wrong. A and B only. One is the answer. Next is 88. Non-obstante clause in section 145 of Negotiable Instrument Act provides for which of the following? Dispense with the procedure under section 200 CRPC. This is correct. Procedure for examination of complainant witness on oath is done away. Yes. Affidavit of complainant and witness can be accepted. Yes, this is correct. Sworn statements recording by the magistrate is dispensed with. This is also correct. So A, B, C, D. 4 is the answer. Next question number 5. I promised to pay rupees 5,000 and to deliver him my black horse on 1st January next. This is an illustration for which of the following? तो क्या ये कोई प्रोमिसरी नोट हुआ? नो. जहां पर भी कंडीशन आ गई तो प्रोमिसरी नोट नहीं बनता. प्रोमिसरी नोट क्या आता है भाई? आई प्रोमिस टू पे रुपीज 5,000 टू बी, तो ये हो जाता है प्रोमिसरी नोट. बट ये कोई वैलिड प्रोमिसरी नोट नहीं है तो बिल ऑफ एक्सचेंज तो हो ही नहीं सकता ऑब्वियसली. तो इसमें 2 आंसर रहेगा. Next 22. I promised to pay B rupees 50,000 and to deliver him my black horse on 1st March. This is a promissory note है. बिल ऑफ एक्सचेंज है नो. एन इंस्ट्रूमेंट पेबल ऑन डिमांड है नो. फिर ये इट इज़ नॉट अ प्रोमिसरी नोट. 4 इसका आंसर रहेगा. ये क्या हो गया? ये तो एक प्रॉमिस हो गया कि प्रॉमिस कर रहा है. प्रॉमिस से वो एग्रीमेंट बन जाएगा, फिर कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, है ना. अगर सिर्फ इतना लिखा होता है प्रॉमिस टू पे रुपीज 50,000 तो वो होता प्रॉमिसरी नोट. नेक्स्ट 37. When a promissory note, bill of exchange or a check is transferred to any person so as to constitute that person holder thereof, the instrument said to be negotiated. 1 is the answer. कहाँ मेंशन किया गया? सेक्शन 14 नेगोशिएशन की डेफिनेशन में ऑफ NI एक्ट. नेक्स्ट है 387. स्टेटमेंट है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मीन्स प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक पेबल आइदर टू ऑर्डर और बेयरर. बिल्कुल ठीक है. फिर है होल्डर मीन्स एनी पर्सन हु फॉर कंसिडरेशन बिकेम द पोजेसर ऑफ द प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक इफ पेबल टू द बेयरर. अब जो होल्डर है उसको फिर कंसिडरेशन की ज़रूरत थोड़ी है. देखिए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की डेफिनेशन कहाँ पर प्रोवाइड की गई है? सेक्शन 13 में. फिर होल्डर की डेफिनेशन कहाँ पर लिखी हुई है? दैट इज इन सेक्शन 8. और वहाँ पर क्या लिखा हुआ है? हु इज एनी पर्सन एंटाइटल इन हिज ओन नेम टू द पोजेशन देयर ऑफ. तो वहाँ पर कंसिडरेशन की बात नहीं की गई है तो ये हो गया इनकरेक्ट. तो 1 इज करेक्ट, 2 इज इनकरेक्ट, 3 इज द आंसर. नेक्स्ट 55. एंडोर्समेंट ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट फॉलोड बाय डिलीवरी. अभी NI एक्ट का है. सेक्शन कौन सा पूछा हुआ है? सेक्शन है ये 50. ट्रांसफर प्रॉपर्टी इन इंस्ट्रूमेंट टू एंडोर्स. यस. ट्रांसफर्स द राइट ऑफ फर्दर नेगोशिएशन टू द एंडोर्सी. Yes. May exclude or restrict the right of further negotiation. Yes. May merely constitute endorsee as an agent. Yes. आपसे क्या रहेगा? A, B, C, D. 4 is the answer. Next 86. Which of the following is true about bill of exchange? Bill of exchange require in its inception 2 parties. No, there are 3 parties. One says that you pay to
Part number 3 on my behalf. Bill of exchange or draft is written order by the drawer or drawee to pay money to pay yes. Bill of exchange are primarily used in international trade and are written orders by one person to his bank to pay the bearer a specific sum on a specific date. देखिए है ना 3 पार्टीज, एक कह रहा है बैंक को भाई उसको पे कर दे, मतलब 3 पार्टी आ गई तो ट्राइपार्टेड एग्रीमेंट होता है ये। फिर डेफिनेशन ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज इज मेंशन इन सेक्शन 5, तो ये रॉन्ग है, तो फर्स्ट एंड डी रॉन्ग, तो क्या आंसर बच गया? बी एंड सी, 3 इज द आंसर। Next 38. Every offense punishable under section 147 Negotiable Instrument Act is compoundable. 1 is the answer. Next 10. Reason assertion है इसमें, क्या कहता है देखिए assertion. A negotiable instrument means a promissory note, bill of exchange or check payable either to order or to bearer. ठीक है, फिर reason है because it is said so in section 13. सो दिस इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन, आंसर रहेगा 1। और देखिए यहाँ पर ये कर दिया ना करेक्ट एक्सप्लेनेशन, 1 इसका आंसर है। नेक्स्ट 100, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसेंशियल रिक्वायरमेंट टू फुलफिल एन इंस्ट्रूमेंट इंटेंडिंग टू बी अ प्रोमिसरी नोट। द इंस्ट्रूमेंट मस्ट कंटेन अ प्रॉमिस टू पे, ये तो कंटेंट है किसका? प्रोमिसरी नोट का, तो ये ठीक है। मेयर एक्नॉलेजमेंट ऑफ इंडेटनेस इज सफिशिएंट, नो इट इज नॉट सफिशिएंट। सम ऑफ मनी मस्ट बी सर्टेन, मस्ट बी अनकंडीशनल, तो ये ठीक है। तो गलत क्या है इसमें? 2। सेक्शन 4 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट बात करता है इसकी प्रोमिसरी नोट्स की, उसमें वहां पर ये सब तीनों कंडीशन लिखी हुई हैं, इसका आंसर रहेगा 2। नेक्स्ट 69 assertion है where a bill is unintentionally cancelled by the holder or his agent, the cancellation is not apparent thereon, the bill is discharged. No, it is wrong. Above principle laid down in 82, no, it is wrong. Both are wrong. 1 is the answer. Next is 73. Which of the following are presumption as to negotiable instrument under section 118 of the Negotiable Instrument Act? तो कौन कौन से प्रिजम्पशन ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी है? ये नहीं है। देखिए ये पूछ रहे हैं सेक्शन 118 में कौन कौन से हैं, तो प्रिजम्पशन ऑफ कंसिडरेशन है, डेट है, मैच्योरिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट नहीं है, तो बी एंड डी इसका आंसर रहेगा। 2 इज द आंसर। नेक्स्ट 68, मैच करना प्रिंसिपल्स को जजमेंट से। इलीगल कंडीशन ऑफ डिपॉजिटिंग अ चेक, अब ये एनआई एक्ट के डिसीजंस हैं, ध्यान रखिए थोड़ा सा। तो ये था प्रदीप लोनारकर वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, ठीक है। फाइलिंग ऑफ अ कंप्लेंट फॉर डिसऑनर ऑफ चेक अगेंस्ट द कंपनी, एस रामास्वामी एमडी वर्सेस टी अयप्पा। फिर नेग्लिजेंस इन कलेक्शन ऑफ अ फोर्स्ड डिमांड ड्राफ्ट, यूबीआई वर्सेस बैंक ऑफ बड़ौदा। फिर लायबिलिटी ऑफ कलेक्टिंग चेक, ऑब्वियसली सीबीआई वर्सेस सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस गोपीनाथ नायर। तो अब क्या बन गया इसका? 4312, तो 3 इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट 69, अब बताना इसमें करेक्ट। ए प्रोमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज इन विच टाइम फॉर पेमेंट इज स्पेसिफाइड इज अ पेबल ऑन डिमांड, नो। इन विच नो टाइम फॉर पेमेंट, तो वो होता है, और ये सेक्शन कौन सा है? सेक्शन है 19 में लिखा हुआ है ये, ठीक है। इफ द एंडोर्सर साइंस हिज नेम ओनली, द एंडोर्समेंट इज सेड टू बी ब्लैंक नॉट फुल, ठीक है। तो ये सेक्शन कौन सा है? 16। फिर where an instrument may be constructed either as a promissory note or bill of exchange, the holder may at his election treat it as either and the instrument shall be thenceforward treated accordingly. ये बिल्कुल करेक्ट है। सेक्शन कौन सा है ये? 17 किसके बारे में बात करता है? एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट के बारे में, ठीक है ना। फिर 4, if the amount undertaken or ordered to be paid is stated differently in figure and word, the amount stated in figures, no, in words shall be the amount undertaken, ठीक है। तो ये भी हो गया गलत। तो ये कहाँ प्रोवाइड किया गया? ये है सेक्शन 18। तो 16, 17, 18 सेक्शन पूछ लिए हैं एनआई एक्ट के, ठीक है ना। तो आंसर रहेगा इसका 3, करेक्ट पूछा हुआ है। नेक्स्ट 68, assertion है it shall not be a defense in prosecution for an offense under section 138 of the Negotiable Instrument Act that the drawer had no reason to believe when he issued the check that the check may be dishonored on presentment for the reason stated in that section. ये करेक्ट है, और ये कहाँ पर मेंशन किया गया? सेक्शन 140 में, बिल्कुल ठीक है ये। तो इसका आंसर क्या रहेगा? 2। बोथ आर राइट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन।
नेक्स्ट 71 assertion है पेयर अलोन whether a corporeal person or incorporeal person shall be competent in cases of dishonor of check। अब देखिए व्हाट इज कॉर्पोरियल, विच कैन बी टच, जिसको आप टच कर सकते हैं, मतलब फिजिकल फॉर्म में है, ठीक है। इनकॉर्पोरेट जिसको आप टच नहीं कर सकते, जैसे कि कंपनी। कॉर्पोरेट कौन हो गया, ह्यूमन बीइंग, मैन, ठीक है। अब क्या सिर्फ कंपनी लायबल होगी यहाँ पर, अगर ये नहीं होता तो अदरवाइज दैट वाज ट्रू स्टेटमेंट। तो यहाँ पर ये है तो कंपनी एंड इट्स डायरेक्टर आर ऑल्सो लायबल, कंपनी सेक्रेटरी इज ऑल्सो लायबल, ठीक है ना। तो 138 में ये नहीं लिखा गया है, तो दोनों ही रॉन्ग स्टेटमेंट्स हैं। तो आंसर क्या रहेगा इसका, 2। So friends, here we have discussed all the questions of Negotiable Instrument Act which came in the exam paper of UGC NET law papers from the year 2016 to 2023। अगर आपको इसमें कोई कमी लगी हो, कोई सजेशन हो, कोई एडवाइस हो, कोई कमेंट्स हो, तो आप जो है कमेंट सेक्शन में जाकर भी लिख सकते हैं। वी ऑलवेज अप्रिशिएट योर कमेंट्स। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और एफर्ट्स हमारे अच्छे लगे हो तो इसको जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, सो दैट दे कैन कम टू नो अबाउट आवर चैनल एंड वो भी बेनिफिट ले सकें। एंड अगर आपको हमारे एफर्ट्स अच्छे लगे हो तो इन एडिशन टू लाइक एंड सब्सक्राइब काइंडली गिव अस अ सुपर थैंक्स। सुपर थैंक्स इज अ वे टू अप्रिशिएट द कंटेंट क्रिएटर। आप जो है जो भी कंटेंट बनाता है उसको अप्रिशिएट करने के लिए कोई भी अमाउंट जो है डोनेट कर सकते हैं। काइंडली गिव अस अ सुपर थैंक्स। सो फ्रेंड्स, थैंक्स वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।